The Assam Cabinet has already given the approval to the socio-economic survey of the indigenous Muslim population in the state. The government has started earmarked areas where the indigenous Muslim population reside. It is no longer required. We know who are in Assamese, those who live for last 200-300 years. So these definition 51, 71, these require lot of paperwork. And paperwork means anybody can do anything. So those who have lived Assam for 200-300 years nicely, they are the indigenous people. So many things you cannot do by law, but you can do by you can do it by your spirit. So like delimitation, we have secured. We have not secured for 51, 71. Now we have made the delimitation in a way that only people who live in 200-300 years, they can only win. Now, apuni jodi commissioner jai, ekor jai, 51 ahi gol, 71 ahi gol, apuni jaglarit pori gol. So now etia ami dhorok enukwa Sipazar to enukwa bonai dilu. Now Sipazar 200-300 বছৰ মানুহে জিকিব পাৰি। এটা নগাঁও সমষ্টিটো এনেকে বনি গল যে 51-71 জিকিব নোৱাৰে। 203 বছৰ 300 বছৰ থকা অসমীয়াহে জিকিব পাৰিব। So we have taken a most realistic approach to resolve the Assam issue. Our Hornbill TV reporter Nakul visited remote villages situated in Kamrup rural district to find out how different the identity of Assamese Muslims and compared to Muslims with East Bengal origins. Villagers spoke about how Assamese Muslims have suffered and have decided not to let anyone from the East Bengal Muslim communities to buy land in their villages. The indigenous Muslim communities have alleged that due to unabated immigration, they are the biggest victims as the Muslims from East Bengal origin have overtaken them culturally and politically. Laos, the chairman of Goria Council, for instance, has blamed the Congress for settling immigrants. मियाँ मुसलमान आने से हमारा बहुत जो हमारा माइनॉरिटी का सरकार ने दिया पैसा वो लोग ले गया हमरा से अभी जो हमारा सरकार ने गोरिया को दिया है स्वीकृति खिलिन जैसे उसके लिए हमारा बहुत सुविधा होगा इसीलिए हम गोरिया बनने के लिए हम कोशिश किया और हम जो बांग्लादेश हमारे गांव में बांग्लादेश का हमें कोई ज़मीन नहीं बिक गया कोई गांव में हमारा बांग्लादेश नहीं आ सकता है हमें मियाँ नहीं सकता है यहाँ तो हमारे घर बन बहुत मन माटी किनने के लिए चेष्टा कर रहा है लेकिन हमें उसको नाकच कर दिया मियाँ मुस्लिम और आप लोगों का बीच में क्या डिफरेंस है बहुत डिफरेंस उसका हमारा ज़मीन एकदम ज़बरदस्ती कर लिया है हमारे शहर में जो जमी है हमारा असमिया मुसलमान से वो ज़बरदस्ती हेरी कर लिया है दखल कर लिया इसीलिए उसको हमें यहाँ से निकल करने के सरकार से हमें अनुरोध किया क्या आप लोग क्या ईद भी बनाता है और बिहू भी बनाता है बनाता है दो बिहू है हमारा असम जो बिहू है बिहू को हम जाते हैं बिहू हमारा गामोसा हमारा सब महिला लोग सब बिहू में गामोसा पहनते हैं सब लोग और आप लोग भाषा क्या बोलते हैं असमिया हमें सब असमिया भाषा हमारा बांग्ला भाषी को नहीं बोलता है नहीं विभजन के नहीं लिया हमारा असमिया जो मुसलमान है वो मुसलमान बहुत बছর से हम बहुत असुविधा मिला था मियाँ बंगाल से वो लोग हमारे जो माइनॉरिटी का बजट जो हमारा पैसा वो ले गया हमको वंचित किया इसीलिए हम अभी सरकार से हमें मिलजुल कर और मियाँ को हमें यहाँ से हटा देंगे ये हमारा प्रतिज्ञा इतना आमी भाबो आमार खाती मुसलमान आमी मियाँ हेरिहाय अসমীয়া মানুহে ধৰ আমি অসমীয়া কৰি চব কৰিব পাৰোঁ কাপোৰ বনাই খাব পাৰোঁ শাল বুয়ো লওঁ কানি কাপোৰ বিকি পেলাই আমি খৰচ খাব পাৰোঁ আমাৰ দিন হাজিৰা কৰে মতাটো দিন হাজিৰা কৰে আমি আৰু এনেকৈ কানি কাপোৰ বৈ পেলাই খাওঁ আমি অসমীয়া মানুহে আমি অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ আমি বাঙালী ক'ব নোৱাৰোঁ আমিতো নাৰ হেৰিহাই মিয়া মানুহ নহয় আমি অসমীয়া মানুহে এতিয়া আমি জোৰ কৰি যেতিয়া আমাক কয় বোলে বাঙালী কওঁ আমি বাঙালী ক'ব নোৱাৰোঁ আমি অসমীয়া আমি ইনকিয়ে চললোঁ সেইখিনিয়ে জানো আমি ঝিংকে আছোঁ ইথান
আগতে জিংকি আছোঁ ইথানো সেনেকৈ ৰাখিলেই ভাল পাওঁ আমি যাতে আমাক ককনে নাই। उन लोग के साथ तो कल्चर ही हमारा कोई हमारा मतलब ताल्लुक नहीं है, कोई हमारा मिलजुल नहीं है। अब देखिए आप तो आए हुए हैं, अभी देखिए आप इस गांव में जब आए हुए आप देखे हैं कि यहाँ का जो कल्चर है हमारे इंडिजिनस लोगों के कल्चर के साथ सेम है। जो हमारा लोग जो अपने आप जो हम लोग सीते हैं, हम लोग कपड़ा बुते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसके बाद जो आप लोग जो रहन सहन जितना आप देखेंगे सब इंडिजिनस मुस्लिम के साथ, इंडिजिनस हिंदू के साथ मिलता जुलता है। तो जबकि हम लोग सिर्फ हमारा जो रिलीजन है अलग है, हम लोग मुसलमान बना क्यों बना कैसे बना वो अलग बात है, लेकिन हमारा दादा परदादा यहाँ के लोग थे, मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ के लोग थे और उन लोगों से हम लोग कन्वर्ट हुआ। क्योंकि भारत स्वाधीन होने के बाद कल तक यानी इस सरकार आने से पहले तक ये जो सरकार थे, जो कांग्रेस सरकार थे, कभी भी इंडिजिनस मुस्लिम्स के बारे में सोचा नहीं था। इन लोग सिर्फ उन लोगों को वोट बैंक बनाया था जो लोग हजारों लाखों लोग यहाँ जो इमिग्रेशन कर रहा था, माइग्रेट कर रहा था, उन लोगों के लिए उनका पॉलिसी था। तो उनका पॉलिसी था इमिग्रेंट मुस्लिम्स के लिए। और हमारे जो अभी का जो सरकार है, इस सरकार का पॉलिसी है यहाँ के इंडिजिनस लोगों के लिए। तो यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने ये यहाँ का मुसलमान लोगों को चुन लिया है कि यहाँ का जो मुसलमान, जो इंडिजिनस मुसलमान लोगों को चुन लिया है। देखा है कि ये जो कम्युनिटीज़ है, ये कम्युनिटीज़ मतलब सालों से मतलब अभी मतलब जो अपना जो अधिकार है, अधिकार को नहीं मिल रहा था। तो अभी जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का जो ऐलान किया है, इससे हम सोचते हैं कि हम लोग बच गए हैं। ये हमारे लिए मसीहा है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया था कि हम लोगों को चुन के हम लोगों का अलग से हम लोगों का कोई इकोनॉमिक सर्वे करें, ऐसा कोई नहीं था। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग का नाम जो है मुसलमान नाम है। अब देखिए मेरा नाम हफीजुल अहमद है, कोई बांग्लादेशी मुसलमान का नाम भी हफीजुल अहमद हो सकता है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इसमें अच्छा होगा। जब हम लोग को आइडेंटिटी ये हफीजुल अहमद कोई बांग्लादेशी मुसलमान है, वो कैसे पता लगेगा? ये इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होने से पता लगेगा। अभी जो पहले जो विलेज आप तो देखिए, यहाँ के विलेज लोग हैं, इस विलेज में आप देखिए कोई बांग्लादेशी मुसलमान मिलता है आपको? कोई भी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं मिलेगा। उसी तरह हम लोग का विलेज एरिया में कोई भी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है। तो टाउन एरिया में, सिटी में अगर कोई भी मुसलमान है, उनका अगर दादा परदादा का कोई भी लिंक अगर इसी ऐसा गांव में अगर रहेगा तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये इंडिजिनस मुस्लिम्स है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो कदम उठाया है, ये सही कदम उठाया है। और ये हमारे लिए, मैं तो बोलता हूँ हमारे लिए आशीर्वाद है, और वो हमारे लिए मसीहा बन के आए हैं कि यहाँ के इंडिजिनस मुस्लिम्स को वो ही बचाएंगे और कोई दूसरा नहीं है बचाने वाला। The All India United Democratic Front and the Congress are questioning the Assam government in this matter. The AIUDF says the government is trying to polarize the Muslim community. Also, the Congress says it is better to have caste census for all than selectively do it for 5 communities. चाहता है कि असम में जो गरिया, मरिया, देसी, जोल्हा, माइमल जो भी है, इनका अगर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना चाहते हैं, अच्छी बात है। अगर इरादा सही है तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट के जरिए असम में असमीज मुस्लिम के अंदर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये गलत है। अगर बीजेपी का इंटेंशन डिवाइड एंड रूल है तो ये गलत है, इसका हम अपोज करते हैं। और अगर इरादा साफ है कि ये जो छोटा ये है असम मुस्लिम्स का, इनका अगर सर्वे हो, इनका इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट कोई स्टेप लो, इनका पॉलिटिकल कोई राइट्स दिया जाए, इनके लिए कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी या सोसाइटी या काउंसिल बनाया जाए, इसके लिए ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या असम में जिनका 1000 सालों का हिस्ट्री है, उनको बीजेपी इंडिजिनियस घोषित करने के लिए सर्टिफिकेट का जरूरत है? क्या बीजेपी का सर्टिफिकेट लेके ये इंडिजिनियस बनेंगे? क्या सैयद अब्दुल मलिक साहब, इनका जो है वंश है, इनके लिए बीजेपी का सर्टिफिकेट का जरूरत होगा इंडिजिनियस बोलने के लिए?
क्या मुफीजुद्दीन हजारिका साहब का फैमिली को बीजेपी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इंडिजिनियस बनने के लिए? लास्ट 7-8 ईयर्स असम में बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है, तो जो 5 कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं उसके लिए लास्ट 5-7 साल में ये लोग क्या किया है, ये सब बात भी डिस्कशन होना चाहिए। अभी आप लोगों को सबको मालूम है 2024 का जो इलेक्शन है वो ड्यू है। बिफोर इलेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट एंड जो हिमंत बिस्वा शर्मा असम का जो सीएम है, ये लोग के पास असम का जनता के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है। जो क्या लेकर जाएगा ये लोग का जो एजेंडा था, कोई भी एजेंडा ये लोग फुलफिल कर नहीं पाया। तो अभी उसके लिए दे आर डूइंग डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला। अभी जो कर रहा है, अभी मान लीजिए 5 कम्युनिटी के लिए लोग सर्वे कर रहे हैं। अगर सर्वे करना है तो हम लोगों का जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी ने जो बोला है जी कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो पूरा देश में कास्ट का सेंसस कीजिए, असम में कास्ट सेंसस करवाइए। उससे क्या होगा, ये पास का नहीं, जितना भी कम्युनिटी है सबका हित होगा, सबका हित में गवर्नमेंट काम कर पाएगा। According to the 2011 census, more than 34% of the Assam population comprises Muslims. Among the state's total population of the 31 million, more than 10 million are Muslims. The Goria, Moria, Jola, which include those living in the tea gardens, and Desi and Sayed, which are only Assamese-speaking communities, were categorized as native Assamese Muslims by the state government in July last year. इस वक्त कामरूप ज़िले के फुटुरी गांव में हूँ और यहाँ के गांव का नज़ारा दिखाने के लिए आया हूँ। यह एक्चुअली ओरिजिनल इंडिजिनस मुस्लिम है, जो आसामीस मुस्लिम बोलते हैं। आइए ये कुछ लोग यहाँ पे गांव के महिला लोग बैठे हुए जो बुजुर्ग है। आप देखिए यहाँ पर बैटल नट जो बोलते हैं उसको बना रहे खाने के लिए, जिसका दांत थोड़ा कमज़ोर होता है उसका बाद खाना खाया जाता है। ये देखिए गांव का महिला है, इस घर का भी परिवार है, यह बुजुर्ग आदमी है। तो आइए कुछ महिला से बात करते हैं। अच्छा বাইদেউ, আপোনাৰ নামটো কি? ফুলজা। খুজা। তো বাইদেউ এইটো কওকচোন যে অসমীয়া মুছলিম বা মিয়া মুছলিমৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আপুনি দেখা পায়? যেনে আপোনালোকে বিহু কৰে বা তেওঁলোকেতো বিহু নকৰে বা অসমীয়া কথা কয়। আমি মুছলমান মানুহ ঘৰীয়া, ৰজা ৰাখোঁ, ঈদ কৰোঁ, তাৰপাছত বকৰি ৰজা ঈদ যোৱাৰ পাছত বকৰি ঈদ কৰোঁ, কুৰবানী কৰোঁ, এইখিনি আৰু ক'লোঁ। দহিৰ পিঠা বনাম মাঘৰ দহিত, মাঘৰ দহি কৰোঁ, মাঘাৰে কৰোঁ, और ईदर কথাখিনি কৰোঁ। और एक बुजुर्ग महिला उससे जानते हैं আপোনালোকক যদি মিয়া মুছলিমবিলাকে আপোনালোকে বাংলাদেশী ইয়াতে আহিছে, আপোনালোকে আমিহে অৰিজিনেল হয় এনেকৈ কয় নেকি? আমাৰ অৰিজিনেল আমি ইয়াতে এই ফুটুৰি গাঁৱত আমি জন্ম পাইছোঁ, ইয়াতে বিয়া হৈছোঁ, ইয়াতে আমাৰ চলি পলি জন্ম পাইছোঁ। চব আমাৰ এখানি মুছলিম জেগাই, এখানি আমাৰ গাঁৱে মুছলিমেই কথাই। আমাৰ ইয়াতে এখানিত নাই একো কাহিনী যেনিবা আমাৰ মুছলিম। যদি চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা আহে এইবিলাক আপোনালোকে পায় নে নাপায়? নাই, একো পোৱা নাই চৰকাৰৰ সুবিধা, একো পোৱা নাই, ঘৰ পোৱা নাই, অৰুণাৰ আঁচনি পোৱা নাই, একোৱে পোৱা নাই দিয়া আমি। মিয়া মুছলিমবিলাকেহে এই সুবিধাবিলাক পায় নেকি? আমাৰ ইয়াতে নাইয়ে দে সেনেকৈ পাৱা, কাবাই কোনোবা ডাকঘৰ পাইছি, বহুতে পাৱাই নাই। और भी एक इस घर का परिवार है जो यंग है, उससे जानते हैं। तो आप तो अगर हिंदी में बता पाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि बुजुर्ग महिला ये लोग तो नहीं बोल सकते। तो आपका सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम नाजियारा है। तो आप बताइए इस गांव में आप कितने साल से हैं? मैं इस गांव में 11 साल से हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ। मैं 11 साल में अभी चल रहा है मेरा शादी होने के। तो आप बताइए तो पहले किस तरह यहाँ पे था और अभी क्या है, थोड़ा बताइए। यहाँ तो पहले मैंने जब 11 साल से देखा है तो हमारे यहाँ तो सब मुस्लिम लोग हैं, असमिया मुस्लिम है। हम सब लोग बिहू मानता है, हमारा जातीय उत्सव बिहू है। हम तो सब यहाँ तो ईद भी पालता है वो बिहू। और हमारा कल्चर तो मतलब हम जब धान खेती करते हैं। लेकिन कुछ मियाँ मुस्लिम लोगों का कहना है कि वो लोग मतलब ओरिजिनल है, आप लोग नहीं है। इस तरह भी थोड़ा सवाल होता है। तो
और वो लोग को सुविधा ज़्यादा मिलता है, आप लोग को कुछ कम मिलता है, ऐसा कुछ है? हाँ, हमारे यहाँ तो सरकारी आसन कुछ नहीं मिलता है, बहुत गरीब आदमी है, कोई भी नहीं मिलता है। कुछ लोगों के लिए तो अरुणोदय और यहाँ तो सरकारी चावल ही मिलता है, बाकी तो कुछ नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, लेट्रिन नहीं मिलता। तो आप लोगों को अगर कोई मुस्लिम बांग्लादेश से आया है ऐसा बोलता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? हमें तो बुरा लगता है क्योंकि हम तो खाद्य असमिया है ना, इसलिए तो जब यहाँ कोई हमको बांग्लादेशी में आता है तो हमारा गुस्सा आता है, इसलिए वो इससे बात करने के लिए हम तो इच्छा नहीं होता। तो ये थे इस गांव की महिला लोग, ये घर का परिवार। तो मैं फुटोरी गांव से हॉर्नबिल टीवी नकुल चंद्र राभा।